जी बेटा शेयर स्क्रीन। जी बेटा लेट्स सी द पिक्चर्स। Let's see the pictures. I'm going to make it little big. Unit root basically data problem. Unit root और stationary ये दोनों same name है बेटा. Unit root और stationary both are data problem. This thing is a data problem. But we mean stationary. Stationary means current value of any variable depends upon previous value. बेटा इसका मॉडल है गिवन वो मॉडल सिंपल किसी भी वेरिएबल का मॉडल क्या होगा करंट वैल्यू ऑफ जीडीपी इज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू ओके बेटा सिंपल इन सिंपल वर्ड कोई भी डाटा अगर उसका कोई ट्रेंड नहीं है स्मूथ है उसका कोई ट्रेंड नहीं है देन दैट डाटा सेट इज स्टेशनरी that data series is stationary. For example, now unit root problem may come here. If all variables in our model, हमारे मॉडल में जितने भी वेरिएबल्स हैं independent variables and dependent variables, if all variables are stationary at level, if all variables are stationary at level, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इतना बताता चलो अगर आपके वेरिएबल्स में स्टेशनरी प्रॉब्लम नहीं है यूनिट रूट प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता देन रिग्रेशन एनालिसिस गिव्स अस अनबायस्ड आउटकम्स ट्रू आउटकम्स अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सारे के सारे आपके स्टेशनरी नॉन उसमें यूनिट रूट का प्रॉब्लम नहीं है स्टेशनरी है सारे के सारे क्या है स्टेशनरी है देन your outcomes your empirical outcomes will be unbiased and actual real you will find real outcomes not spurious अगर आपके वेरिएबल्स में कोई एक वेरिएबल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है नॉन स्टेशनरी है then you make sure that our empirical outcomes will be spurious. Spurious means fake, not true, not actual outcome. अगर आपका सारे का सारा डेटा फॉर एग्जांपल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स they are stationary at level they are stationary at level already we have done for this one simply we will apply simple regression model simply we will apply simple regression analysis if all variables are stationary at level if all variables second option if all variables are stationary at level and some variables are stationary at first difference okay if some variables are stationary at level but a level mean variables की actual form उसका डिफरेंस भी नहीं हम ले रहे लेख भी नहीं ले रहे सिंपल फॉर्म जो ना वो लेवल फॉर्म है if some variables are stationary at level and some variables are stationary at first difference mean बेटा क्या है current value minus previous value of any variable is called difference variable अगर किसी भी वेरिएबल का आप डिफरेंस ले डिफरेंस लेने के बाद वो स्टेशनरी है फर्स्ट डिफरेंस करो स्टेशनरी d into that variable if some variables are stationary at level and some variables are stationary at difference मोस्टली बेटा यही केस होल्ड करता है कुछ वेरिएबल्स आपके लेवल पे स्टेशनरी होते हैं
Then the ARDL method is the most suitable technique for estimation to estimate the economic model. Then ARDL estimation method is the most suitable method to estimate the economic model. To estimate the economic model, first जो इकोनॉमिक मॉडल आपने बिल्ड किया था, हम उस इकोनॉमिक मॉडल को ARDL मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस ARDL मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए ARDL एस्टिमेशन मेथड। मोस्टली ऐसे ही होता है कि हमारे कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो लेवल पे स्टेशनरी होते हैं, कुछ वेरिएबल हमारे डिफरेंट स्टेशनरी होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में हमने EView पे हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। Okay, now third option, if all variables are stationary at first difference, all variables are stationary at first difference, okay. दूसरा हमने लास्ट टाइम किसका किया था, हमने काम राफिया का मैंने आपको बताया था। राफिया के मॉडल में जितने वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी थे। देन I suggest Rafia to apply Johansson co-integration method to estimate the model, economic model. मैंने इसको बताया था कि आप Johansson co-integration करेंगे मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए। ओके बेटा, डाउनलोड कर ले फिर करना स्टार्ट करेंगे। चले मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हो जाएगा आपको, कोई तो मुश्किल नहीं। After co-integration, we learned that the variables are co-integration. Co-integration बेटा मीनिंग क्या है? ARDL co-integration बेटा ये सारी की सारी co-integration है। Co-integration की मीनिंग क्या है? लॉन्ग रन रिलेशन। ठीक है? डिफरेंस क्या है? सिंपल रिग्रेशन, ARDL co-integration। सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, अदर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ARDL में भी ऐसे भी है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, अदर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट को-इंटीग्रेशन में सारे वेरिएबल एक दूसरे के साथ को-इंटीग्रेट हो रहे होते हैं। यानी वन टाइम आप एक वेरिएबल को डिपेंडेंट लेते हो, तो वन बाय वन आप वेरिएबल को डिपेंडेंट लेते हो, अदर वेरिएबल्स को आप इंडिपेंडेंट रखते जाते हो। फिर हम वो मॉडल लेते हैं जिसमें हमने अपना कंसर्न वेरिएबल डिपेंडेंट अवेलेबल होता है। अगर आपके कुछ वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी और कुछ आपके सेकंड डिफरेंस स्टेशनरी है, देन ऑटो रिग्रेसिव मॉडल इज द मोस्ट सुटेबल। आफ्टर को-इंटीग्रेशन वी कंटिन्यू longer relationship and error correction model. We will continue this one in the next lecture. First, please download the EView. I think one of you students have done EView application installation. Okay, but that is brief introduction. Now you have the data. Please, you write on your economic model. Then you search out that you have the data on all variables. सारे बच्चे अपना अपना डाटा लें। ओके, डाटा कलेक्ट करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मेरे पास इकोनॉमिक मॉडल अपने पास में डाटा मैंने आपको सेंड किया हुआ है। अब आपने बताना है कि आपके पास कौन सा डाटा अवेलेबल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गया बेटा? अब हमारे पास मोस्टली बच्चों के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो बच्चों के सारे वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी होते हैं, फिर उसके लिए हम सिंपल वाला अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी होते हैं, वो हम कर सकते हैं। ये कुछ फर्स्ट पे होते हैं या कुछ सेकंड पे होते हैं। ठीक है, उसका एक अदर ऑप्शन है।
या लेवल पे होते हैं या फर्स्ट डिफरेंस पे होते हैं, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ARD मेथड। ये मैंने जो आंसर को इंटीग्रेशन मेथड को आपने आपको मैंने डिस्कस कर लिया था। सेकंड दोबारा से करवा दूंगा आपको, कहते हैं कि आप प्लीज ईवी डाउनलोड करें, टुमारो ईवी डाउनलोड करके आए। सर जी बताएं। सर आपने ये जो फाइल मेल की है ना, ये नहीं हो रही है, डाउनलोड हो गई है, उसके बाद ये चल नहीं रही, इसमें वायरस आ रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही। आप प्लीज रजिस्ट्रेशन नहीं करनी आपने, या आप लैरब से रब्ता करें, वो आपको बताएगी, ठीक है। सर मैंने और लरेब ने एक साथ ही किया था, हम दोनों का ये मसला आ रहा है और वो पैच फाइल में भी ओपन नहीं हो रही। उसने मुझे अभी बताया कि सर मैंने कर लिया है। मैंने सर वो ईव्यू डाउनलोड हो गया है, जो आपने बताया है ना कि विनरेयर करके करो, वो हो गया डाउन, सारा कुछ हो गया है, बट वो फिर आगे उसको जब ईव्यू को आप